Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Capricorn Ascendant and the predictions for the month of September 2023. So for your ascendant, the ascendant lord Saturn is going to sit in the second house and is going to see an opposition with Sun till the 16th of September. Now usually the first house lord sitting in the second house is considered a very good position because it results in a significant amount of cash flow, but since this is Saturn, it does not give anything easily. So you will see an inflow of cash flow, but very slowly till the time Saturn is occupying this position, which is till the middle of 2025. But in the month of September, you will feel a little bit of stress with your family and constraints in the cash flow because of this aspect of Sun on Saturn, and you should try to avoid getting into conflicts with your family in this month. For your ascendant, Venus is a highly benefic planet, and while it was in a retro position in the month of August, it is going to turn directional in the month of September. Venus is the natural significator of opposite sex, and further, it is your fifth house lord. So, this is a great month to engage in romance and spend time with your partner. 6th and 7th September are the best days for romance in the month of September. Your ascendant people usually get a very emotional spouse and who sometimes behaves in a very childish manner, and usually a large age group gap exists between the Capricorn ascendant people and their spouses when you compare them to the other ascendants. Venus also rules over your house of education and speculation. So if you're a student, then the best time to appear for any competitive exam is from 16th to 18th of September. And if you are in the business of speculation, then the best time to gain from the market is between 18th to 20th of September. If you run your own business, then 18th and 19th September is the best time to excel in your business, as there is going to be an exchange of the 7th house and 10th house lord on 18th and 19th of September. But in the month of September, if you're planning to invest large amount of money in business, then you should take the advice of a market expert before you do so. The sixth house lord Mercury will be transitioning through the eighth house throughout the month and will be joined by the house lord Sun till 16th of September. So this is a good month to excel at your workplace, and you will get an opportunity to rise and shine at the workplace between 15th to 21st of September. Jupiter is combining with Rahu in your fourth house, and since Rahu indicates all things that are alien and Jupiter also is the owner of the 12th house that indicates foreign country, this combination of the two planets in your domestic house is providing you an opportunity to travel to foreign countries. And for those who are looking for immigration, the whole month of September as well as the first half of October is going to be a great time to fulfill your wish of immigration. People who are planning to buy a property should wait till the end of October, and only after Rahu moves out of this fourth house that they should aim for buying any kind of a property. So time frame from 1st of November 23 to end of April 24 is very beneficial from buying a property. Now there are also certain days where you need to be careful, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. So you should avoid taking any key decisions during these months, and you should also avoid getting into arguments with people. So for your ascendants, the days where you need to remain cautious are 8th and 9th of September, 13th and 14th of September, and 23rd and 24th of September. Be cautious during these 6 days. So this is the summary for you for this month. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि मकर लग्न के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, आपके लग्न के लिए लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे। अभी लग्नेश का द्वितीय भाव में बैठना आमतौर पर अच्छा ही कहा जाता है, क्योंकि ये आपके लिए धन की आवक करता है, और हालांकि ये शनि है फिर भी ये अपने परिणाम धीमे धीमे ही सही लेकिन देगा तो ज़रूर। तो आपके लिए कैश फ्लो आता रहेगा सितंबर 2025 तक, जब तक शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन सितंबर 23 के महीने में शनि और सूर्य की प्रतियुति हो रही है, जो कि कुछ खास अच्छी नहीं कही जाती, क्योंकि शनि और सूर्य पुत्र और पिता हैं और आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने की वजह से आपको अपने परिवार में थोड़ा सा तनाव महसूस होगा, और इस महीने में कैश की आवक भी आपको थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। इसलिए आपको इस महीने में किसी भी स्थिति में अपने परिवार वालों के साथ नहीं उलझना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लग्न के लिए शुक्र योग कारक ग्रह हैं और वो सितंबर के महीने में मार्गी हो जाएंगे।
अगस्त के महीने में शुक्र पूरे महीने वक्री थे, जिसकी वजह से आपको उसके परिणाम सप्तम भाव में मिलने की वजह से नहीं मिल पाए थे। वो आपको सितंबर के महीने में मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके लगने के लिए शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं, जो कि शेयर बाजार और आपकी शिक्षा को दिखाता है और आपके बच्चों को दिखाता है। तो चूंकि पंचमेश सप्तम भाव में है, तो ये बहुत ही शानदार महीना है रोमांस के लिए। आप अपने पति पत्नी के साथ समय बिता सकते हैं और 6 और 7 सितंबर का समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आपके लग्न के लोगों के लिए हमेशा आपको एक ऐसा व्यक्ति पार्टनर के रूप में मिलता है जो बहुत ज़्यादा भावुक होता है और कई बार बच्चों वाली हरकतें भी करता है। और जनरली आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में उम्र में काफ़ी फासला होता है अगर हम बाकी लग्न के मुकाबले में देखें तो। स्पाउस के साथ समय बिताने के लिए महीना बहुत ही शानदार है। इसके अलावा शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक होने की वजह से अगर आप छात्र हैं तो जो सबसे अच्छे दिन है सितंबर के महीने में किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की दृष्टि से, वो है 16 से 18 सितंबर। और अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाने का समय देख रहे हैं तो 18 से 20 सितंबर तक का समय भी बाजार से फायदा उठाने के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव से आप व्यक्ति का बिजनेस भी देखते हैं तो 18 और 19 सितंबर को आपके सप्तमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों दिन बिजनेस में आमदनी के हिसाब से और फायदे के हिसाब से सबसे अच्छे दिन है सितंबर के महीने के। अगर आप इस महीने में कोई बहुत बड़ी राशि अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, तो वो करने के पहले आप किसी ऐसे मार्केटिंग कंसल्टेंट या बिजनेस कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जिसको इस बारे में अच्छा अनुभव हो। बिना इसके बिजनेस में एकदम से पैसा मत लगाइए ज़्यादा अमाउंट में। आपके लगने के लिए बुध षष्ठेश बनते हैं और नवमेश बनते हैं और वो अष्टम भाव में पूरा महीना बैठे रहेंगे। यहाँ पर इनकी युति होगी सूर्य के साथ सितंबर के पहले हाफ में। तो 16 सितंबर तक बुध भी बैठे रहेंगे अष्टम भाव में और जो अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो भी इनका साथ देंगे यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा महीना है उन सारे नौकरी पेशा लोगों के लिए जो अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कार्यस्थल पर लोग नोटिस करें। और 15 से 21 सितंबर तक का समय नौकरी पेशा लोगों की दृष्टि से सबसे अच्छा है। यहाँ पर उनको अपने कार्यक्षेत्र पर प्रगति करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सितंबर के महीने में गुरु राहु आपके चौथे भाव में बैठे रहेंगे और चूंकि राहु का संबंध हर तरह के फॉरेन या अनजान व्यक्ति से आता है और गुरु की भी आपके लग्न के लिए 12वें भाव की ओनरशिप है, तो दोनों ही फॉरेन वाली एंटिटीज का आपस में कंजंक्शन हो रहा है चौथे भाव में। तो जितने भी लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं काफी लंबे समय से, या जो लोग इमिग्रेशन की तरफ देख रहे हैं, इमिग्रेशन यानी अपना देश छोड़ के किसी और देश की नागरिकता ले लेने का हम इमिग्रेशन बोलते हैं, तो उनके लिए पूरा सितंबर का महीना और अक्टूबर का पहला हाफ यानी 15 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। आपको इस समय में फॉरेन जाने का भरपूर मौका मिलेगा और जितने भी लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत शानदार है और उनके समय में फॉरेन जाकर बस जाने की बहुत ही तगड़ी संभावना है। अगर आप इस समय में कोई भी जमीन जायदाद लेने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अक्टूबर के एंड तक राहु चतुर्थ भाव में भी बैठे रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति में आपको प्रॉपर्टी से खरीदने में धोखाधड़ी हो सकती है या आपको इस तरह की कोई जमीन जायदाद मिल जाएगी जिसपे पहले से और लोगों का मालिकाना हक है, तो आपको फालतू में इसकी वजह से परेशानी होगी। तो आप 1 नवंबर के बाद ही कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार करें। 1 नवंबर से लेके अप्रैल 2024 का आखिरी तक का समय प्रॉपर्टी खरीदारी की दृष्टि से बहुत ही फेवरेबल है। अभी हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए और ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 स्थानों से निकलता है। तो आपके लगने के लिए जो दिन ऐसे हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए वो है 8 और 9 सितंबर, 13 और 14 सितंबर और 23 और 24 सितंबर। इन 6 दिनों में आप सावधान रहिए। तो ये आपकी समरी है सितंबर के महीने की। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।